Assalamualaikum everyone and welcome back to another video. तो आज की वीडियो के अंदर we will basically go through how to fill the online application, AQs basically online application. So all you have to do first is go to Google, write down AKU MBBS admission and आपका जो पहला लिंक होगा MBBS admissions का आपने उसको ओपन कर लेना है. After that, scroll down and यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगी apply online की, just click that and this will open a new window. Now, if you're a new user यानी आप पहली दफ़ा रजिस्टर कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करें. And over here now you have to write down your email and password and basically stuff. Now remember ये email आपने सोच के डालना है because अगर आप ये email ऐसे ही डाल देंगे तो remember कि सारी जो future updates हैं वो आपको इसी email पे आनी है, so be aware of that. So let me write down this email. ठीक है, अपना email डालें इसमें. And once you're done doing that, you can set up a password. Obviously. Secret question, whatever you want. Let's say my first job was a YouTuber, which is not true by the way, but let's just say. Now कहेंगे हम आपको एक email भेजेंगे इसके ऊपर सारी, ठीक है. So they have written it down as well कि all admission related correspondence will be sent to this email address. So just click on yes. Now जब एक दफ़ा ये हो जाता है, you cannot log in unless and until you verify your account first. And in order to do that, you have to first open your email. So मेरे पास फ़ोन के अंदर ये email है. When you go there, आपको एक email आई होगी AKU की तरफ से. All you have to do there is उधर लिखा हुआ होगा to verify your account and complete your application process, click here. तो आपने उस हेयर पे क्लिक कर देना है and that's it. That's going to verify your account. Now that I'm done doing that on my phone, I can go ahead and write down my email here now. ठीक है. और अब हम कर लेंगे लॉगिन. गलत ईमेल डाल दी थी. No worries, let's write this down. So there you go, we are now here. Now आपने अगली चीज़ जो करनी है before you can start an application is to fill out your personal details. ठीक है. तो obviously बात है, अपना पहला नाम लिखें और अपना दूसरा नाम लिखें. मिडिल नेम अगर है तो वो लिख लें. जेंडर चूज़ करें. अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें. सो आई पुट एन इमेजिनरी वन फॉर माई सेल्फ. ठीक है. और फिर हम डाल देंगे मैरिटल स्टेटस. कंट्री ऑफ रेजिडेंस, assuming you're someone from Pakistan, तो just write Pakistan. Your nationality, so because I'm from Pakistan and I'm Pakistani, so my nationality is Pakistani as well, so I'm going to write down Pakistan. Now national ID हम डालेंगे. I'll skip that for now, but I'll come back to it. Now if you're a local applicant, go for national ID, but अगर आप ओवरसीज से हैं तो आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं. Now जिन चीज़ों के ऊपर asterisk नहीं है, they're not mandatory, but if you want you can write down your father/mother's name. If you are a previous AQ student, then you can write this down as well. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ईमेल एड्रेस मौजूद है. अब जो है वो हमने इसमें अपना नंबर डालना है. तो हम अपना एक इमेजिनरी नंबर डाल देंगे. ठीक है. If you want you can put a landline as well. फिर हम डाल देंगे एड्रेस. सो मेरा एड्रेस फॉर नाउ इज़ जस्ट AKU. The country is Pakistan and city is Karachi. Postal code डालना है तो डाल लें. प्रोविंस डाल लें. नाउ सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस. तो मेरा तो परमानेंट एड्रेस यही है अगले कुछ सालों के लिए. सो आई जस्ट क्लिक ऑन सेव. अच्छा, अब वो मुझे ऑब्वियसली कहेगा कि नेशनल ID डालें. ऑब्वियसली आई विल नॉट पुट माई ओन, या बट आई जस्ट ब्लर इट आउट. ओके. अब हम चलते हैं आगे. तो आगे जाने के बाद एज यू कैन सी द फर्स्ट थिंग दैट दे कैन आस्क यू इज़ कि आप किस कंट्री से अप्लाई करें, या इन अदर वर्ड्स किस कंट्री, आई शुड रादर से कि किस कंट्री के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें. तो वी वांट टू अप्लाई टू द वन इन पाकिस्तान. एंड बिकॉज आई एम अज्यूमिंग यूर अप्लाइंग फॉर MBBS, यू कैन सेलेक्ट दैट एंड यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट एप्लीकेशन. क्लिक ऑन येस. आई एक्सेप्ट करें. नेक्स्ट पे जाएँ. Now as you can see the fees is 7,000 and the only three things that you require to fill this application is a passport sized color photo, a CNIC या फिर आपका B form if you're less than 18 and आपकी application fees.
$7,000 for all of these countries, and it's $150 for any country outside of that. So I'll click on I accept, move on. Now सबसे पहली चीज़ जो आपसे इधर पूछ रहे हैं वो बेसिकली है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम A लेवल बैकग्राउंड, तो मैं A लेवल डालूंगी. नाउ 2018 में मैंने A लेवल शुरू किया था, दैट इज़ व्हाट गोज़ देयर, एंड मैंने ख़त्म किया था 2020 में, सो दैट गोज़ देयर. इंस्टीट्यूशन का नाम डालें, सो मैंने लाहौर ग्रामर स्कूल से किया था, आई रोट दैट, इट वॉज इन लाहौर, सो आई राइट दैट. नाउ अज्यूमिंग कि यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, अभी आपने फॉर एग्जांपल मई जून में अपने CIs देने हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे रिजल्ट्स अवेटेड पे. अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी गैप ईयर पे था और उसके पास उसके रिजल्ट्स मौजूद हैं, then you uncheck that. But assuming you're a fresh graduate, just click on results awaited and save and new qualification. You don't need to add any of your marks, वो वैसे भी डलेंगे भी नहीं. और अगर आप let's say metric FCC से हैं, then you can go ahead and fill this out. सेव एंड न्यू क्वालिफिकेशन पे जाएंगे. अब आप यहाँ पर जाकर चूज़ करेंगे O levels, ठीक है. ईयर ऑफ एडमिशन मेरा 2015 था एंड मेरी ईयर ऑफ कम्प्लीशन वॉज 2018. अगेन लाहौर ग्रामर स्कूल से मैंने किया था, फ्रॉम लाहौर. ये करने के बाद आई विल क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड. सो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, यू कैन सी इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म, जस्ट फिल दैट अप एंड go ahead. Now for most of you, you don't need to fill this page out. This is for people who are applying from overseas, जिनके पास ऑलरेडी डिग्री है, उनको इंटरनेशनल MCAT रिक्वायर्ड होता है. इफ़ यूर स्टिल नॉट श्योर इफ़ यू रिक्वायर्ड और नॉट, यू कैन चेक AQ's ब्रोशोर या फिर मेरी फर्स्ट वीडियो जो सीरीज़ में आप वो देख लें. आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर देयर इन डिटेल कि कौन से लोग हैं जो इंटरनेशनल MCAT जिनको देना रिक्वायर्ड होता है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग हियर, जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड. ऑलराइट, सो इधर आपने बेसिकली एक ही को बताना है कि आपके पास कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन सी नहीं है. तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके O लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होगा. आपका A लेवल सर्टिफिकेट अभी आप कह सकते हैं इन प्रोसेस है, यानी अभी आया नहीं है. और जो अंडर ग्रेजुएट है वो ऑब्वियसली आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा. इफ़ यू समवन फ्रॉम गैप ईयर, तो आपके पास प्रॉबेबली दोनों होंगे, तो जस्ट क्लिक ऑन अवेलेबल. इफ़ यूर समवन हु इज़ एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट या ग्रेजुएट स्टूडेंट जो अब अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप इसको या अवेलेबल कह सकते हैं, ठीक है, या इन प्रोसेस कह सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑब्वियसली. तो फॉर एग्जांपल अगर तो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप अवेलेबल कर देंगे, और अगर आप अभी ग्रेजुएट फॉर एग्जांपल आप AQ में एडमिशन के बाद जो है अपनी लीव लेंगे, तो आप इसको इन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है. सो आई एम स्टिल गोइंग टू अज्यूम दैट द पीपल दैट आई एम द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हियर आर गोइंग टू बी फ्रेश ग्रेजुएट. सो दिस इज समथिंग हाउ this is how it might look for you. So just click on I accept and go on save and next. Alright, the next thing you need to do is upload your document. क्या documents upload करनी है? सिर्फ और सिर्फ CNIC upload करना है. So you click here. Now if you're under 18, go for B form. Obviously if you're older than 18, then CNIC लगाएं. इधर आप लिख देंगे CNIC, आप जो भी document को नाम देना चाहते हैं. I'll write my name for example कि this is my Shaukat CNIC. Now obviously I would have to upload something, ठीक है. और यहाँ पर आप अपलोड के ऊपर जाएं, लेकिन रिमेंबर कि या तो वो JPG एक्सेप्ट करेगा या PDF एक्सेप्ट करेगा. आई पुट डाउन समथिंग, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पुटिंग डाउन समथिंग. फॉर एग्जांपल आई जस्ट पुट दिस, ठीक है, एंड वील क्लिक ऑन अपलोड. जब वो अपलोड हो जाएगा, देन यू कैन गो एंड क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड. दैट्स इट, ठीक है. ऑलराइट, हो गया. तो अब हम सेव एंड प्रोसीड कर लेते हैं. अब वी कम टू द लास्ट स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन साइकिल, विच इज़ फर्स्ट यू नीड टू टेल देम योर टेस्ट सेंटर जिधर आप देना चाहेंगे. अगर यहाँ पर आपका सिटी नहीं आ रहा तो प्रॉबेबली AKU इधर टेस्ट नहीं लेता. तो आप जो भी आपका नियर बाय सिटी जिसमें आप देना आपके लिए कन्वीनियंट है, आप वो चूज़ कर लें. उसके बाद यू कैन टेल देम हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट AKU. तो लेट्स से I'll just give myself a bit credit here. Let's say if this YouTube channel basically told you more about AKU, you can maybe select AKU student. I don't know, it's up to you. And now we come to the payment mode. Now payment mode दो तरीके से होती है, या फी वाउचर से होती है, ऑनलाइन पेमेंट होती है. फी वाउचर में आपको बेसिकली इस पर क्लिक करना है और आप इस पर क्लिक करेंगे येस, and this will generate this fee voucher for you. You would have to print it, go to any branch of HBL, एंड वहाँ पे आप पैसे डिपॉजिट करा देंगे 7,000 रुपीज़. और डिपॉजिट कराने के बाद आपका जो पेड वाउचर होगा, आप वापस आके उसकी तस्वीर लेंगे और इधर अपलोड कर देंगे, और साथ आप अपना बैंक एंड ब्रांच नेम भी रख सकते हैं, ठीक है. एंड देन आप अपनी रेफरेंस नंबर भी लिख सकते हैं जिस दिन आपने वो सबमिट कराया. डॉक्यूमेंट का नाम डालें, फॉर एग्जांपल फी वाउचर __ whatever your name is, and then you click on save and then submit.
अगर लेट्स से आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, क्लिक ऑन ऑनलाइन पेमेंट, क्लिक यस। नाउ मेक श्योर दैट योर पॉपअप्स आर नॉट ब्लॉक्ड, ठीक है। तो क्रोम पे ये ब्लॉक्ड यूजुअली नहीं होते हैं, अगर आप सफारी या कहीं और पे करेंगे तो हो सकता है वो ब्लॉक्ड हो, तो ये वाला आपका टैब ओपन ही होगा, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर दैट योर पॉपअप्स आर नॉट डिसेबल्ड, या सॉरी दे आर नॉट ब्लॉक्ड। नाउ विद दैट दिस विल ओपन ये वाली चीज़, ठीक है। नाउ अब आपके पास जब ये आ जाता है तो ऑब्वियसली आपके सामने कुछ डिटेल्स आ रही है जो आपने फिल करनी है, आपका पहला नाम, आपका लास्ट नेम, एंड देन यू हैव टू फिल योर ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी। तो वो आपको ये मिल जाएगा, ये ट्रैकिंग आईडी है, ठीक है। इसको आपने इधर कॉपी पेस्ट करना है, एड्रेस डालें, अपना एड्रेस टू डालें, ठीक है, सिटी डालें, अपना कंट्री डालें, स्टेट डालें और ईमेल डालें, और यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट नंबर भी रिक्वायर्ड होगा। अब इधर जब आप आएंगे तो आपने सेलेक्ट करना है मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ वेयर यू डायरेक्टिंग द मनी, एंड आप पाकिस्तानी रुपीज़ में आई एम अज्यूमिंग पे कर रहे हैं बिकॉज यू आर समवन हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। इधर 7,000 को डालें, मेक श्योर आपने अमाउंट सही डाली हुई है, एंड देन पर्पज़ में आप लिख दें कि MBBS एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे करना है प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक, एंड यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड। दिस इज़ गोइंग टू ओपन अप, आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्वियसली प्रोसीड बट इट्स गोइंग टू ओपन अप दिस पॉपअप जो HBL बैंक से होगा। वहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे और अपनी बाकी डिटेल्स डालेंगे, जिस तरह कि आपका कार्ड होल्डर पे नाम क्या है, आपका सिक्योरिटी कोड क्या है, स्टफ लाइक दैट, एंड यू विल बेसिकली पे दिस अमाउंट। जब आप पे कर लेंगे तो आपने बेसिकली जो सक्सेसफुल पेमेंट होने की स्क्रीनशॉट होती है ट्रांजैक्शन की, आपने वो लेनी है और वो आपने इधर आके अपलोड करनी है, ठीक है। एंड बैंक एंड ब्रांच नेम डालें, ठीक है, अपना फ़ी डॉक्यूमेंट नेम डालें, ये डालें, ये डालें, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड देन सबमिट। अच्छा, वन लास्ट थिंग बिफोर सबमिट ऑब्वियसली, दैट इज़ द फोटोग्राफ, ठीक है। तो फोटोग्राफ मेक श्योर इट्स टेकन इन द लास्ट 7 days, ठीक है। पूरा आपका फेस नज़र आना चाहिए, एंड फिक्र ना करें, जब आप AKU में आ जाते हैं तो आपका जो स्टूडेंट कार्ड बनता है उसमें एक नई तस्वीर लेके पिक्चर डाली जाती है, लेकिन AKU के रिकॉर्ड में जो आपकी तस्वीर चली जाएगी फिर वो यही होगी। तो मेक श्योर इट्स अ गुड वन, ठीक है। एंड आई वुड रिकमेंड कि बिफोर यू क्लिक ऑन सबमिट अपनी एप्लीकेशन को एक नज़र दोबारा देख लें, ठीक है। So I'll go on active applications, go on edit incomplete application. So just go through your steps one more time to make sure that you have completed everything. और जब आपकी तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने सब चीज़ें जो हैं वो सही से डाली हुई हैं, तो आप इधर आएंगे आखिरी पेज पे, and then you will just click on submit. So remember, please review, save, and then submit your application. ठीक है? So that's that, guys. If you found this video helpful, then give it a big thumbs up, subscribe to the channel, and hit the bell icon. And I will see you next time with video number 4 of the AKU Admission Guide Playlist 2024. Till then, Khuda Hafiz.